and I said that there is an we are able to get, I said that red sandstone from here, and there is an which one is spotted red sandstone. Yes, sir. And you know that here it is, I said which one, granitic rock, and from there it is in this region we can be able to get marbles, or यहाँ पे marbles, and the nearby region also the limestone is available and also marbles. So in this region marbles are available, therefore the which stone has been utilized? I said marble. Which one I said that? Marble. Can you see in your mind? So गंधारा स्कूल आप में what we have utilized? ग्रे स्टोन, बिना देखे आपके दिमाग से बोलना चाहिए. एंड देन मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर में रेड सैंडस्टोन, एंड इन द अमरावती स्कूल में मार्बल. और किसके पेट्रोनेज के अंदर में हुआ? कुशाणस, and it is Satavahanas, and thereafter Ikshvaku, and then it come under the influence of Pallavas. Yes or not? And then after we are watching it, I said that in this region, यहाँ पर I said that Greek and Roman influence, most of the Greek, I said the rulers are there. तो यहाँ पर ज़्यादातर क्या रहा? Greek and Roman influence. Which one I said that? And Greek and Roman influence. Is it okay? और यहाँ पर Greek and Roman influence in the Mathura school, and which one? अमरावती school में there is no influence. Yes. लेकिन इसके बाद देखा जाए तो सभी में I said that there is a Buddhist. Here it is also I said that Mathura school में Buddhist था, but at the same time it is secular. What? Secular. There is an I said that Jainism, Buddhism, and what? Hindus related gods, goddesses are also there. Yes or not? This is the secular. Is it okay? Clear? And spotted red sandstone, Buddhist. केवल देखना है क्यों यहाँ पर क्या है? Yes, tell me. तो there is an influence of, I said that Hinduism. Yes, sir. And then we can be able to see Jainism, Buddhism. This is the center ना. यही region तो था जो सबसे ज़्यादा it was under the influence. Yes, तो यहाँ पे Hindu, Jain and Buddhism all have been grown. Yes or not? And we can be able to, in this region we have been able to see, I said that mostly I said Buddhist culture. Which one I said that? Buddhist culture. Because through these routes we are transferring our Buddhism culture to the, I said that Southeast Asia. Yes, sir. Yes or not? So there is an, I said, influence of which one? Buddhist. Which one? Buddhist. Buddhism. दिमाग में सेट हो गया? यहाँ पे क्या था? Just tell me. Buddhist. Here it is, I said that secular, Hindu, Jainism and Buddhism. Yes or not? Yes, sir. Thereafter here if you are able to see, I said that Buddhist. कौन कौन सा स्टोन वहाँ पर? ग्रे स्टोन, स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन, मार्बल. एबल टू लोकेट? सच बताऊं कि कई बच्चों को यही नहीं याद रहता है, वो रटते रहते हैं केवल 3-4 साल में जाकर ही उनको ये आइडिया होता है कि कहाँ पे क्या होगा. थैंक्स कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो इस चीज़ को. यहाँ ये सारी चीज़ें क्योंकि मैं ज्योग्राफी से कोलेट करके पढ़ाता हूँ मैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट. और वही चीज़ दिखी रहती है वहाँ पे, तो स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू कोरिलेट. एंड देयर आफ्टर कई बार मैंने बताया भी है कि यहीं से बुद्धिज्म एंड अदर रिलीजन हैज बीन, जब ट्रेड हो रहा है तो ट्रेड के साथ क्या ग्रो करेगा? रिलीजन विल आल्सो स्प्रेड. एंड देयर आफ्टर आई टॉक्ड अबाउट, यस, यहाँ की जो बुद्धिस्ट का जो फीचर था उसमें स्पिरिचुअलिज्म नजर आ रहा था. जो भी है वहाँ पर क्या है? spiritualism. We are able to see some kind of feeling, and spiritualism is there. Yes, what is there? एक जो कि
पर्शियन स्टाइल, ग्रीक स्टाइल सब मिला हुआ था, जिसमें कि स्पिरिचुअलिज्म की फीलिंग आ रही थी। ऐसा ना, बियॉन्ड द रिलीजन से ऊपर बढ़कर सोचना, स्पिरिचुअलिज्म। एंड यहाँ पर ऐसा नहीं था, बट लाइफ लग रही थी कि देयर इज नॉट लाइफ, नो स्पिरिचुअलिज्म बट नो स्पिरिचुअलिज्म। जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदू इन्फ्लुएंस था, लेकिन एक स्पिरिचुअल की भावना जो होती है ना, कि जो दैट इट इज कमिंग फ्रॉम यू, फ्रॉम द इनर साइड, एंड देन यू स्टार्टेड फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। यस, तो ये फीलिंग यहाँ पे नहीं है इन दिस स्कल्पचर्स, देयर इज, बट यहाँ पे एक लाइफ की फीलिंग थी। गुड आर्किटेक्चर वाज देयर, बट देयर इज नो, आई सेड दैट, फीलिंग ऑफ लाइफ। इज इट ओके? नो स्पिरिचुअलिज्म, ओनली लाइफ। अंडरस्टूड इट? यहाँ पे भी देयर इज एन, आई सेड दैट लाइफ वाज देयर, बट एट द सेम टाइम वी कैन बी एबल टू सी, यहाँ पे ज्यादातर नैरेटिव, मतलब लग रहा था कुछ बोल रहे हैं, यस ना, नैरेटिव स्ट्रक्चर्स जो भी था। अब जैसे पहले भी मैंने बताया होगा कि बुद्धास वहां पर क्या है, तो दे आर, व्हाट इज इट, दैट गॉड्स आर प्रेइंग टू द बोधिसत्वास टू टेक बर्थ, यस ना, तो टेक बर्थ इन द फॉर्म ऑफ, आई सेड दैट, in the womb of the elephants, in the form of white elephants, and they have to take birth below the teak tree. So ये सारी क्या है, narrative. So it is looking like, I said that, more of narrative. Yes or not? Life is there, narrative, but spiritualism was not that much. Is it clear? Is it okay? यहाँ पे that they have, what I said, that cloths, तो draperies, यदि देखा जाए तो ड्रैपरीज ऑन द शोल्डर्स, यहाँ पर थोड़ा सा शोल्डर्स पे, जैसे आप देखेंगे वहाँ पे ग्रीक्स, रोमन गॉड अपोलो, तो वहाँ पर एक कपड़ा लटका हुआ रहता था। यस नॉट, दैट इज, आई सेड, एंड दैट इज अ ड्रैपरीज हैंगिंग अलोंग द व्हाट, कैन यू रिमेंबर? यस, ड्रैपरीज। मैं ऐसा समझा रहा हूं कि वहां पे आप कुछ लिख सकें, आपको फीलिंग आ जाए कि मैं लिख सकता हूं आज से 2, 3, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 10 मंथ्स के बाद भी। इज इट ओके? एंड दिस इज द थिंग दैट वी कैन बी एबल टू सी इन विच रीजन? यस, टेल मी। गंधार स्कूल ऑफ। लेकिन यहां पर जो ड्रैपरीज था, टाइट ड्रेस, मतलब लग रहा था कपड़े एकदम खींच खींच कर, होता है ना, खींच खींच के यहाँ चिपका। यस, एंड आई सेड, हाँ, रिलीजन ज्यादा था, हाँ, रिलीजियस एस्पेक्ट ज्यादा था, स्पिरिचुअलिज्म कम था, तो टाइट ड्रेस हो गया। नहीं, ट्रू है, सच है। आई सेड, यहाँ खुले पे बैठ के स्पिरिचुअलिज्म की भावनाएं ग्रो की जा रही है, एंड देयर इज अ टाइट ड्रेस पे स्पिरिचुअलिज्म आएगा कहाँ से? So understood, and I said that these are the things in the, what I said, the different schools. So during the postmodern phase, we have been able to see, I said the 3 schools have been grown, and these are Gandhara, Mathura, and Amravati. It is okay? Gandhara, Mathura, and Amravati. Gandhara में Kushanas, Mathura में Kushanas, and then there is, I said that, Satavahanas and Ikshvaku. It is okay? And some influence of Pallavas. And which are the stones utilized? Yes, tell me. Grey stone, spotted red sandstone, marble. And then I have said Greek, Romans, and यहाँ पर ग्रीक रोमन से, तो यहाँ पे जो बना हुआ था बुद्धिस्ट, जो लगता था, जो बुद्ध का फीचर बना हुआ है, वो लगता था जैसे कि ऐसे अपोलो गॉड, मतलब उनके लिए ना ऐसे, जितना बॉडी बिल्डर बन के निकल के खड़े हो जाओ ना, वैसा लगता है बॉडी, दैट इट हैज बीन फॉर्म्ड, इट्स लाइक ना, हाँ, बाउंसर नहीं कहो, दैट इज ओके, इट इज सिमिलर टू द अपोलो गॉड। यहाँ पे जो बुद्धिस्ट थे, वो उनका ज्यादातर क्या था, अभय मुद्रा के पोज में था। क्या है? मथुरा स्कूल में कई बार बताया कि इट इज विच मुद्रा? अभय मुद्रा। इज इट ओके? अभय मुद्रा। इज इट ओके? सो एंड
और यहाँ पे क्या है, स्पिरिचुअलिज्म इज देयर बट देयर इज न लाइफ इज फीलिंग स्पिरिचुअलिज्म. यहाँ पे लाइफ इज देयर, स्पिरिचुअलिज्म तो दैट इज द नेक्स्ट लेवल, बट वी हैव टू से मोर ऑफ व्हाट narrative. Yes or not? And thereafter we have seen, yes, there is an loose dresses are there, draperies hanging along the shoulders. यहाँ पे tight dresses, there is no anything as such. Is it clear? So we have seen about which one I said that sculpture during the I said that which post-Mauryan period. It is okay. Now the next one that we are going to see is Guptas. मार्बल क्यों नहीं रहेगा? कोस्टल रीजन है तो मार्बल तो रहेगा ही रहेगा. वो ग्रेनाइट है तो ग्रेनाइट के बीच में मार्बल नहीं फंसेगा. लाइमस्टोन रॉक होगा तो उसको ग्रेनाइट की वजह से प्रेशर एंड टेम्परेचर मिलता रहेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मार्बल इज एन मेटामॉर्फिक रॉक ऑफ व्हाट? लाइमस्टोन. यस. तो इसमें हम लोग गंधारा स्कूल में क्या देखे? इट इज फ्लोरिश ड्यूरिंग द व्हाट कुशाना रूल एंड इट वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच वन? ग्रीक एंड रोमन आर्ट. इनके बाल वेवी हियर, ड्रैपरीज कवरिंग बोथ द शोल्डर्स एंड देन फुटवेयर रिप्रेजेंटेशन, फुटवेयर भी था जो चप्पल पहनते हैं. एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा एज द ग्रीक गॉड अपोलो वेयर द कॉमन फीचर विच रिजेंबल्ड द ग्रीक आर्ट. The Roman influence was evident by representation of youthful and imperial status, जो कि लगता था जैसे बॉडी बिल्डर है, youthful, and then which I said that grey stone, that is grey slate, used for image making, the representation of calmness and spirituality. और जो region है ये यहाँ पर गंधारा जो यहाँ पर yes, बामियान, which region I said that? बामियान, जलालाबाद and गंधारा. Which are the three region? Yes, yes. तो यहाँ पर जितने भी ब्राह्मण थे, मियों ने क्या कर दिया? जला दिया. अरे ब्राह्मण थे जितने भी यहाँ पे, मियाँ ने क्या कर दिया? उनको जला दिया. अब उसमें से गंध है या ना है कोई फर्क नहीं पड़ता. आई सेड दैट बामियान जलालाबाद, बामियान यस. तो यहाँ पर ये किया गया. एंड दिस इज इन द मथुरा. देयर आर द थ्री आई सेड दैट रीजन्स आर देयर. यस. विच आर द थ्री रीजन? वन इट इज आई सेड दैट कंकाली, सोंक, मतलब कंकाल बनने के लिए क्या चाहिए? सोंक. मथुरा कंकाली सोंक. यस ना? यस. जब मैथ्स का सिचुएशन आता है ना, मैथ समझते हो ना? यस. तो ज़्यादातर लोग सूख जाते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं और दिमाग से भी कंकाल बन जाते हैं कि मेरे में कुछ नहीं है. क्या है? मथुरा, MATH, मैथ. यस और नॉट? मैथ्स की वजह से लोगों का शरीर कैसा हो जाता है? सूख जाता है. और क्या हो जाते हैं? कंकाल बन जाते हैं ना. तो मथुरा, सोंक एंड कंकाली तीला. विच आर द थ्री रीजन्स आई सेड दैट इन द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट. यस और नॉट? एंड देन दो रीजन तो आप लोग पहले से सुन रखे हैं. वहां पर नागार्जुन कोंडा सुन रखा आपने. यस और नॉट? तो अर्जुन भाई खड़े थे. यस. अर्जुन समझते हैं ना? अर्जुन. और यहाँ पे उन्होंने तीर चलाया, इसका मतलब गोली चलाई. क्या चलाई? गोली चलाई. और गोली घंटा लगा. गोली पीपल यूज्ड टू से, जब नहीं लगता है तो क्या बोलते हैं? तो हमने अर्जुन ने क्या चलाया? गोली, तीर चला रहे हैं ना. एंड एक्चुअल में देखा जाए इन द माइथोलॉजी इट हैज बीन सेड दैट कि when there is in a Mahabharata में there was a fight taking place between Arjun and I said that Karan. तो when the Arjuna has I said that जब अर्जुन ने अपना तीर चलाया तो 7 steps the ratha of the Karan has moved. I said that 7 steps back. Yes or not? And then when the Karan has moved the I said their arrow,
and then it has moved only 3 steps. Then the Arjun become very happy. देखिए कि he has, I said that 7 steps and my only 3 steps. I am the bigger than this. So and then the Krishna said that you don't know better. I am sitting on you. Even then it has moved back 3 steps. यदि मैं नहीं होता तो तुम मुड़कर ऊपर चले जाते. Yeah. तो हमने वही बोला, अर्जुन ने गोली चलाई, घंटा लगा. सो अर्जुन, नागार्जुन कोंडा, कोली घंटा साला. और ये पहले भी मैंने बोला था. I said that during the Satvana we are doing, Ganjam is one of the, I said that what port, and Ghantasala ke paas port. I said this is clear to you. So now we are going to see that what Guptas, which one? And then Gupta's days mein only there is, I said that what we have seen, Gupta's days mein there is a gods and goddesses are numerous, gods and goddesses, numerous goddesses. Can you remember? Numerous gods and goddesses. Is it clear? Gupta's days mein what we have seen? Numerous gods and goddesses. चलो जैसे हम लोग यहाँ पे गुप्ता's days में आ गए तो मेरे साथ बोलेंगे शेषाशयी. Can you see? And then हमने क्या बोला? गजपति. क्या क्या बोला मैंने? शेषाशयी, गजपति. Thereafter I said Gupta is कहाँ पे है? That is I said that in the nearby Mathura and all. Yes. तो गज है, गज समझते हैं ना? And you can be able to say शेषाशयी and गजपति मतलब गजेंद्र. Can you see in your mind? और उसमें 5 एक आप ध्यान से पिक्चर अपने दिमाग में बनाएंगे. देयर इज, आई सेड दैट गज, शेषा, शेषनाग. शेषाशयी मीन्स शेषनाग इज सिटिंग ऑन द, आई सेड दैट गज. और उसके पीछे बैठे हैं 5 पांडव एंड द्रौपदी. कैन यू रिमेंबर? कैन यू सी इन अ पिक्चर? आई सेड दैट शेषाशयी सिटिंग ऑन द गज एंड पीछे में कौन बैठे हैं? हु हैज बीन सीटेड? 5 पांडवास and Draupadi, and they are moving forward. Yes or not? और वो पहुंच गए मथुरा. मथुरा में देखा कि गोवर्धन भाई साहब, कृष्णा जी ने गोवर्धन उठा के खड़े हैं. बोले तुम भी पीछे बैठ जाओ. यस ना? ये घूमते जा रहे हैं, यहाँ पे मथुरा पहुंचे. यस. गज पर कौन बैठा है? शेषाशयी, शेषनाग. और उनके पीछे कौन बैठा है? 5 पांडवास एंड द्रौपदी. दे आर मूविंग. बोले कि मथुरा में बोले कृष्ण जी आप भी आ जाओ, मेरे ऊपर बैठ जाओ. अंडरस्टूड? गोवर्धन पर्वत उठाने वाले. तो बोले कि ठीक है बैठ जाते हैं. देन देयर इज अ कमिंग ऑफ यमुना एंड गंगा. देयर इज अ कमिंग ऑफ व्हाट? उन्होंने बोला चलो यमुना रिवर एंड गंगा रिवर को क्रॉस करते हैं. कैन यू सी इन योर माइंड ऑल दिस पिक्चर? विच रिवर्स आर देयर? देयर इज अ गंगा रिवर एंड यमुना रिवर. तो दे क्रॉस यमुना एंड गंगा एंड देन रीच टू द कैलाश. एंड कैलाश पे शिव और पार्वती से मिले. किससे मिले? फिर वो बोले कि अब हम लोग लौट के आएंगे. तो वो लौट कर आए तो यहाँ पर कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? सारनाथ. क्या बोला हमने? यस टेल मी फास्ट. गजेंद्र मोक्ष. शेषाशयी मतलब शेषाशयी का मतलब शेषनाग नहीं है. एक्चुअली में ऑन द शेषनाग इन द शयन पोजीशन विष्णु इज व्हाट? laying down. जिसको बोलते हैं शेषाशयी. Yes or not? And then there is an, I said that there is a Lakshmi is sitting near to the lake, and this is a one sea is their ocean, Chir ocean, Chir Sagar. And there is a Madhu and Katav. These are the 2 the monsters are there, and they are coming to kill. I said. So this picture is there. Yes. Which one I said that? Sheshashayi. So Sheshashayi, can you remember? And then Gajendra Moksha. Which one I said that? And thereafter we have talked about 5 Pandavas and Draupadi. और उसके बाद हमने बोला रेड सैंडस्टोन स्टैचू. अब मथुरा पहुंचे तो वहाँ पे बुद्धा का स्टैचू. और साथ में
और वहाँ पर हमने बोला गोवर्धन कृष्णा को भी बिठाया, एंड देन इमेजेस ऑफ गंगा एंड यमुना, images of Shiva and Parvati मिले, and they are returning back standing Buddha